جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اوصاف، نہایت اچھی عادتیں اور خصلتیں ودیعت فرمائی تھیں، بلکہ تمام نبیوں، تمام رسولوں اور ساری اولاد آدم کے اوصاف حمیدہ اور خصائل عالیہ کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تو بہت سے مشرکین نے بہت سے لوگوں کو روکا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا، ان کو نہ دیکھنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، وہ ایک جادوگر ہیں، تمہارے اوپر جادو کر دیں گے۔ لیکن آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا، آپ جب قرآن پڑھتے تھے اتنی اچھی آواز میں پڑھتے تھے کہ لوگ اپنے آپ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، لوگوں کو کان لگانا پڑ جاتا تھا۔ اب اسی کے ساتھ جلسے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان مقرر خصوصی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ آپ مدرسہ مظہر الاسلام جو بلوچپورے میں واقع ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ ہے، اس کے نگران اعلیٰ بھی ہیں اور استاد حدیث و تفسیر بھی ہیں۔ آپ طلباء پر بڑی ہی شفقت فرماتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم کو ملاتے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں ندوی علماء کے استاد ہیں یہ شخصیت، تو بظاہر یہ بات بیجا نہیں ہوگی، یہ بات زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ کا ہم تمام طلباء پر بڑا ہی شفقت والا معاملہ رہتا ہے۔ ہم تمام طلباء نے جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں، 8 سال تقریباً مظہر الاسلام سے ہم لوگوں نے فراغت کی، اس کے بعد ہم لوگوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 2 سال پڑھ کر کے فراغت کی، لیکن حضرت کی شفقت ہمارے ساتھ مستقل طور پر رہی اور ابھی تک کہ حضرت ہم کو قیمتی مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں التماس کر رہا ہوں ایسی شخصیت سے کہ جس کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں، انقلاب آفریں جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے حضرت والا سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر آ کر کے اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ یہ اس کو تھوڑا سا دوری رکھنا ہے، دور آواز سکھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، یقیناً آپ حضرات جس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ نسبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ہے۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہوا ہے۔ خاص طور سے آپ کا یہ جلسہ، اس کا جو پس منظر ہے بڑا مبارک ہے، بہت ہی اچھا ہے، چونکہ یہ جو جلسہ رکھا آپ نے، یوں تو بہت سے دینی جلسے ہوتے ہیں، لیکن اس جلسے کی خاصیت یہ ہے، ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں کے تعلق سے حدیث میں بڑے فضائل آئے ہیں، لیکن ان تمام مجالس سے بڑھ کر یہ مجلس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو گشتی فرشتے کہلاتے ہیں، جن کا کام ہے چلتے پھرتے رہنا اور چلتے پھرتے ہوئے ان مجلسوں کو ڈھونڈنا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اب جب وہ مجلسیں مل جاتی ہیں تو ان مجلسوں کو فرشتے گھیر کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف، جس کی تم تلاش میں ہو یہ یہاں ملے گا۔ مثال کے طور پر شیخ پور میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو اب فرشتے ایک دوسرے فرشتے کو، جو گشتی فرشتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ چل پھر کر مجلسوں کو تلاشنا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایک دوسرے کو بلاتے اور بٹھاتے کہ آؤ یہاں تمہارا مقصود ملے گا۔ پھر جب وہ مجلس مکمل ہوتی ہے اور فرشتے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باوجود یہ کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ، ایک مجلس تھی جس میں آپ کی حمد و ثنا آپ کے بندے بیان کر رہے تھے، اس مجلس سے آنا ہوا ہے، کیا چاہ رہے ہیں میرے بندے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، وہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ کا پیار چاہتے ہیں۔ مجھ کو دیکھا ہے؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں ہے آپ کو۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اور زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں اور زیادہ آپ سے تعلق رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کا مطالبہ ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے آپ کی جنت چاہتے ہیں۔ فرشتوں جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرشتے جنت دیکھا تو نہیں ہے اے اللہ۔ اللہ عرض کرتے ہیں کہ اگر جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر جنت دیکھ لیں وہ تو اور زیادہ جنت کے حریص بن جائیں اور زیادہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے لگیں اور زیادہ اس کے خواہاں ہو جائے۔ اچھا کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ کے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بتا فرشتوں اگر جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے بار الہ اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ مانگنے لگے آپ کی اور زیادہ آپ سے اس سے حفاظت کی دعا مانگنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو اس بات کی کہ میں نے اس مجلس کے شرکاء کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا،
ان کی خطاؤں کو میں نے درگزر کر دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے بار الہ، مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بلا کسی ارادہ اور نیت کے مجلس میں بس یوں ہی بیٹھ گیا تھا، کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، وہ ایسی مجلس تھی، ایسی مبارک مجلس تھی کہ اس میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی نیت رہی ہو یا نہ رہی ہو، اس کی بھی مغفرت میں نے فرما دی اور اس کے بھی گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ مجلس اللہ کو اتنی مبارک ہے، اتنی محمود ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ مجلس کے سارے شرکاء کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ مغفرت کا ہے، گناہوں کی معافی کا ہے۔ گناہ معاف ہو جائے، مغفرت ہو جائے تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا۔ اب یہ مجلس جو آپ کی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ سارے شرکاء کو اللہ مغفرت فرمائیں گے، ہر ایک کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس مجلس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ تو عام مجالس کی فضائل ہے جو میں نے آپ سے بتایا، جو دین کی نسبت پر منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مجلس، اس کا درجہ بڑھا کیوں؟ اس کا درجہ اس وجہ سے بڑھا کہ یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ تاکہ اس میں وہ لقطہائے جگر، وہ نور نظر جنہوں نے اللہ کے کلام کو سیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہے، جس نے اللہ کو ایک جاننے کا سبق سیکھا ہے، خاص طور سے ان کے لیے یہ منعقد کی گئی ہے اور آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو نسل تیار ہوگی آگے، جو یہ نسل تیار ہوگی آگے، گویا کہ آئندہ ذکر کرنے والے اور آئندہ ذکر کی مجالس منعقد کرنے والے پیدا ہوتے رہیں، اس طرح اس اعتبار سے اس مجلس کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی اللہ کی نگاہوں میں۔ یاد رکھیں، یہ جو دینی مکاتب ہیں، جو مکتب جہاں جس علاقے میں ہے، یہ دین کے چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ شہ رگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر شہ رگ کاٹ دی جائے تو انسان کا بچنا مشکل ہے، کوئی نہیں بچا پائے گا اس کو، پھر تو اس کی جان چلی جائے گی۔ یہ مکاتب جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سکھایا جاتا ہے، جہاں دین کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں، جہاں ایک اللہ سے ہونے کا یقین بچپن میں سکھایا جاتا ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور عصری علوم حاصل کریں گے تو ان کا ایمان اتنا پختہ ہو چکے گا، اتنا مضبوط ہو چکے گا کہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ مکاتب وہ کام کر رہے ہیں، تو بڑے مبارکباد ہیں وہ محلے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو مکتب قائم کرتے ہیں، اور بڑے ہی مبارکباد ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان مکاتب میں داخل کرا کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سکھلاتے ہیں، دین کی بنیادی جو باتیں ہیں عقائد کے تعلق سے اس کو سکھلاتے ہیں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ان کی سادہ دلوں پر لکھواتے ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہے۔ یاد رکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عصری علوم اسکولز اور کالجوں میں پڑھوانا اور سکھانا یہ منع نہیں ہے، پڑھایا جائے، خوب پڑھایا جائے، لیکن یاد رکھیے اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنا ایمان و عقیدہ محفوظ رکھے گا؟ کیا ضمانت ہے؟ اگر آپ مکاتب کی تعلیم سے آنکھ بند کر لیں گے، دین کی بنیادی تعلیم سے آنکھ بند کر لیں گے، عقائد سے آپ آنکھ بند کر لیں گے، تو ان اسکولوں میں جہاں
जो मालाई फिक्र बच्चों के जहनों में घुसाने की कोशिश हो रही है, शहद में जहर मिला कर दिया जा रहा है, बच्चे शिर्क और कुफ्र पढ़ रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा, उनकी हिफाजत कैसे होगी? जाहिर सी बात है उनकी हिफाजत इन मकातिब से होगी, इन मदारिस से होगी। अल्लाह ने आलम का जो निज़ाम कायम कर रखा है, ये दुनिया चल फिर रही है, ये किसकी बरकत है? ये साहिब ईमान की बरकत है, साहिब ईमान की बरकत है। ईमान वाले का ये अकीदा है और हबीब किबरिया का फरमान है कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रुए ज़मीन पर रहेगा, अल्लाह इस आलम का निज़ाम चलाते रहेंगे, और जिस रोज अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह आलम का निज़ाम तोड़ देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया की, अब किसी के रहने की गुंजाइश नहीं है, सब जब मेरे बागी बन गए हैं तब मैं दुनिया को बाकी नहीं रखूंगा। तो ये वो मदारिस, ये जो अगर यूं कहा जाए कि ताजमहल की सफेदी, लाल किला की सुर्खी, शहरों की जगमगाहट और सारे आलम की रोशनी, और ये चलत फिरत इन मदारिस की बरकत से है, इन मकातिब की बरकत से है, तो बात झूठी नहीं होगी। अगर ये नौनिहाल, ये बच्चे मकातिब की तालीम न हासिल करें और आप और हम मकातिब से आंखें बंद कर लें, तो ये चराग बुझ जाएगा, फिर ये दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा, फिर हम कसूरवार ठहरेंगे। ये वो खेप है जो खेप अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को लेकर उठेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लेकर के उठेगी, अल्लाह का प्यार लेकर के आगे बढ़ेगी, और फिर ये क्या होंगे आपके लिए? ये आपके लिए सरमाए आखिरत साबित होंगे। कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये आपका कीमती सरमाया है। अब हमारी गुजारिश है तमाम अहबाब से, अपने तमाम भाइयों से, कि अपने बच्चों को मकतब की तालीम ज़रूर दें। और एक बात हमारे यहाँ बड़ी ख़राब ये हो गई है कि हम ये सोचते हैं कि हमने कुरान पाक को जैसे तैसे पढ़वा दिया और उर्दू पढ़ना आ गया, बस समझ लेते हैं कि हमने दीन का काम और दीन की जो जिम्मेदारी आयद होती थी बच्चे के ताल्लुक से, वो पूरी कर दी। अरे भाई, सिर्फ कुरान की तिलावत, वो भी टेढ़े मेढ़े अल्फाज में, सिर्फ उर्दू का पढ़ना सीख लेना, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। दीन तो नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और ईमानी तरीकों का। दीन नाम है खुदा को एक मानने का, जो कि वहदहू ला शरीक है। दीन नाम है अकाइद का, जिनकी तफसीलात उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखी है। अब मकातिब का जो सिलेबस है, जो निसाब है, वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बच्चा दीन की जो बुनियादी चीजें हैं, उन बुनियादी चीजों को सीख ले और सीख कर परवान चढ़े। बड़ी गफलत बरती जा रही है, बड़ी गफलत बरती जा रही है। ये गफलत हमारे माशरे से दूर होना चाहिए, वरना आग लग जाएगी माशरे को, कोई बुझाने वाला नहीं होगा। इर्तिदाद फैल रहा है उम्मत के अंदर, और ये वाकयात कहीं दूर के नहीं हैं। आपके इस लखनऊ शहर में सैकड़ों की तादाद में है। रिपोर्टें जो सामने आ रही हैं, उससे खुलकर बात ये आ रही है कि आज इर्तिदाद की लहर चल पड़ी है, और इसमें खास तौर से बच्चियां जो दीनी तालीम से नाआशना है, या ये कि घर का माहौल दीनी नहीं है, इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं। कौन संभालेगा?
कौन तवज्जो देगा। माँ बहनों के ताल्लुक से बात पहले आती थी कि कभी भी ये ईमान का सौदा नहीं कर सकती हैं, कभी भी ईमान के ताल्लुक से एक समझौता नहीं कर सकती हैं। लेकिन आखिर आज क्या हो गया है अपने मुआशरे को कि ये खबरें, ये दिलखराश खबरें, दिल को तड़पा देने वाली खबरें सुनने में आ रही हैं कि आज फला इलाके में कोई मुर्तद हो गया, फला इलाके में कोई मुर्तद हो गया, फला इलाके की बच्ची ने गैर से ताल्लुक करके अपने आप अपना मजहब बदल दिया। ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम बहुत ज्यादा गाफिल हो गए। हमारे माशरे में बुराइयां बहुत आम हो गई हैं। हालांकि अल्लाह का पाक कलाम ऐलान करता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो, बामुराद हो गया वो जो बुराइयों से बचता रहा। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब को याद करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, अपने रब को याद करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। तो कामयाब और बामुराद कुरान किसको बताता है? जो बुराइयों से बचता रहा है और बचाने की फिक्र में भी लगता रहा है। और बुराइयों से जाहिर सी बात है जो चीज बचाएगी वो अल्लाह की याद और नमाज। नमाज क्या है? नमाज अगर जिंदगी में सही आ गई तो आदमी को ये नमाज बुराइयों से बचाएगी। अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है, बुराइयां भी कर रहा है, वो अपने नमाज की फिक्र करे कि नमाज जैसी पढ़नी चाहिए वैसी नहीं पढ़ रहा है, कुछ कमी है, कुछ कोताही है, कुछ गलती है। इसी वजह से तो नमाज उससे झूठ को नहीं छोड़वा रही है, नमाज उससे धोखा नहीं छोड़वा रही है, नमाज उससे फरेब नहीं दूर कर रही है, नमाज उसको बदनजरी से नहीं रोक रही है। नमाज का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। आका फरमाते हैं, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, मेरी नकल करो। और मेरी नकल कब आएगी? मेरी जैसी नमाज कब आएगी? वो तुम्हें सहाबा से सीखनी है। सहाबा की जो मोहब्बत और सहाबा का जो प्यार था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा प्यार और ऐसी मोहब्बत दुनिया पेश करने से कासिर है। एक मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर आकर आपके रूबरू बैठते हैं कि आका मुझे 3 बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। क्या बात है अबू बकर? फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको देखता रहूं। अन्नज़रु इलैका, जी चाहता है कि मेरी नजर आपसे न हटे, आका आपको देखता रहूं। ये देखिए सिद्दीक अकबर की मोहब्बत, जिसकी वजह से मकाम सिद्दीकियत पर वो पहुंच गए थे। फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब मुझे बहुत पसंद है, मेरा जी ये चाहता है कि बस आपको देखता रहूं, आपको देखता रहूं, आपसे मेरी नजर हटने ना पाए। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे आका, वो ये है अल-जुलूस बैन यदैक, जी ये चाहता है मेरे आका कि आपके सामने बैठा रहूं, आपके सामने मुझे बैठा रहना दुनिया व माफिया से ज्यादा महबूब है मेरे आका आप हो, और मैं आपके सामने बैठा रहूं। तीसरी बात मेरे आका जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है अल-इंफाक़ु अलैका, आप पर खर्च करना मुझे बहुत पसंद है मेरे आका। मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, आप पर खर्च करना मुझे बहुत पसंद है। सिद्दीक अकबर की ये मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी से। देखो जब मोहब्बत और मारिफत दो चीजें एक साथ होंगी
तभी कामयाब है वो आदमी। सिर्फ आदमी सोचे कि मार्फत से काम बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। मार्फत कहते हैं पहचानने को। मिसाल के तौर पर हमने पहचान लिया कि ये हमारा भाई है, हमने पहचान लिया कि ये हमारे चचा हैं, हमने पहचान लिया कि ये हमारी दादी हैं, हमारे दादा हैं, ये हमारे महल्ले के लोग हैं। तो क्या पहचानना बस काफी है? पहचानना ही सिर्फ काफी है? नहीं नहीं नहीं, पहचानने के साथ साथ मोहब्बत भी जरूरी है। और मोहब्बत कौली भी होना चाहिए, फेली भी होना चाहिए, यानी जबान से भी मोहब्बत हो और अमल से भी मोहब्बत हो। मुसलमानों की, ईमान वाले की कामयाबी अल्लाह की मारिफत में है, अल्लाह को पहचानने में है और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत में है। अगर मोहब्बत नहीं हुई तो सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। और ये मोहब्बत और मार्फत, ये मदारिस, ये नन्हे मुन्ने बच्चे और ये दीन की बातें और ये मजलिसें हमें सिखाती और बताती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक रखना चाहते हो, तो मेरी पैरवी करो, मैं जैसे कहता हूं वैसा करो। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तुम्हें अपना चहीता बना लेगा, तुम्हें अल्लाह अपना प्यारा बना लेगा। लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूं वो तुम करो। आज हम क्या कहते हैं? आज हमारा ईमान वाला भाई और हम क्या कहते हैं कि मानेंगे अल्लाह के रसूल की, पहचानेंगे तो अल्लाह के रसूल को, लेकिन हम करेंगे तो अपनी मन की। ये जुबान से तो कोई नहीं कहता, लेकिन आज अमल से हम यही कह रहे हैं, अपने अमल से हम यही कह रहे हैं। हालांकि अल्लाह का जो ताल्लुक है बंदे से, बंदे को वो ताल्लुक अल्लाह से बिल्कुल नहीं है। आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करते हैं। उनके प्यार की कोई हद और इंतहा है? हरगिज नहीं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तुम क्या अल्लाह से प्यार करोगे? अल्लाह तो तुम्हें 70 माह से ज्यादा प्यार करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार भी तुमसे करता है। कुरान मजीद गवाही देता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा तुमसे तो इतना ताल्लुक है कि तुम्हारी शहरत तुम्हारे इतना करीब नहीं है जितना करीब मैं हूं तुम्हारे। तुम्हारी मां तुमसे क्या प्यार करेगी जो प्यार मैं तुमसे करता हूं। और ये जबान से नहीं, शहादत दी है कुरान ने। और देखिए, खाना गले से उतरकर मैदे में पहुंचता है, नाक से सांस लेते हैं और खुली फिजाओं में रहते हैं, जरूरियात को पूरा करते हैं। जो मसाइल आते हैं उसके हल होने की शक्लें ये कौन निकालता है? हम और आप निकालते हैं। चलिए मान लीजिए हम और आप निकालते हैं, लेकिन कहां से निकालते हैं? जो अल्लाह ने दिमाग दिया है उसी दिमाग से तो इनका हल निकालते हैं। तो बताओ अल्लाह को प्यार है कि नहीं है? अल्लाह चाहते हैं मुझे तुमसे इतना प्यार है, मुझे तुमसे इतना ताल्लुक है। इसका नतीजा क्या होना चाहिए कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो, तुम भी मुझसे ताल्लुक रखो, तुम भी मेरे बन के रहो। और कैसे रहोगे बन के? वो मेरे हबीब की बारगाह में आके सीखो। वो बताएंगे कि मेरा प्यार क्या है, मेरी मोहब्बत क्या है, मुझसे ताल्लुक कैसे होगा। वो मेरे हबीब से आकर सीखो, अबू बकर सिद्दीक से सीखो, हजरत उमर से सीखो, हजरत उस्मान से सीखो, हजरत अली से सीखो। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी राह खुदा में लुटा दी। बड़ा मसला यह है कि बाद लोगों से जब कुछ ऐसी बातें की जाती हैं तो कहते हैं, अरे भाई बच्चों की परवरिश और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी तो जरूरी है। हाँ है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे आप तो गुनहगार होंगे, खुदा की बारगाह में पकड़ होगी। अगर कोई आदमी ये सोच ले कि हम दिन भर मस्जिद में बैठे रहेंगे और सिर्फ तस्बीह पढ़ लेंगे और आंखें बंद कर ले अपने बच्चों से, आंखें बंद कर ले अपनी बीवी से, आंखें बंद कर ले अपने अईजा अकरबा से,
सख्त ऐसा शख्स नापसंद है खुदा की बारगाह में। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि रिश्ता नाता जोड़ कर रखो। देखो भाई, कौन कहता है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं। तो कहां ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ तस्बीह और मुसल्ले पे बैठ जाना दीनदारी है, जो बहुत धड़ल्ले से कह दिया जाता है कि ये लोग साहब चाहते हैं कि सब छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हरगिज न छोड़ा जाए, ये छोड़ना नहीं है। और ना ही दुनिया की ऐसी मजम्मत है। अरे कुरान और हदीस में जिस दुनिया की मजम्मत है भाइयों, वो दुनिया है जो दिल में उतर जाए। दुनिया दिल में ना उतारा जाए। फरमाया दुनिया जेब में रखो, दुनिया जेब में रखो, दिल में न उतारो। आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक सहाबी रसूल हैं, अल आका के पास आते हैं, मेरे आका कुछ दे दीजिए। क्या है भाई? जी बहुत परेशानी है और घर में फाका हो रहा है। आका फरमाते क्या है तुम्हारे पास? जी हुजूर मेरे पास एक प्याला है और सहाबी अर्ज करते हैं मेरे आका मेरे पास एक प्याला है और ये मेरी कमली है। अच्छा इधर लेकर आओ। अरे भाई है कोई जो ये प्याला और ये कमली खरीद ले? एक सहाबी उठते कहते हैं अल्लाह के रसूल हम इसको 1 दिरहम में ले लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते अरे भाई और कोई बढ़ाएगा? एक सहाबी उठते कि अल्लाह के रसूल हम 2 दिरहम में ले लेंगे। अच्छा लाओ भाई लाओ। 2 दिरहम दिया और उनका प्याला और वो जो कमली थी उनको दे दिया। उन 2 दिरहमों को लेकर आका ने क्या किया? 1 दिरहम उनको दिया कि ये जाकर के जो कुछ गल्ला पानी है उसका इंतजाम करो, और दूसरा दिरहम दिया, कहा जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कुल्हाड़ी लेकर आओ। अब वो जाते कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से, अपनी मुबारक हाथों से उसमें दस्ता लगाते हैं, हत्था लगाते हैं और कहते हैं यहां आइए, ये उठाइए कुल्हाड़ी और यहां से जाइए। 15 दिन दिखाई न पड़ना, 15 दिन दिखाई न पड़ना हमें। सहाबी रसूल हैं। मस्जिद नबवी का सवाब कितना है? तमाम मस्जिदों से बहुत कई गुना ज्यादा सवाब है उसका। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की अहमियत होने के बावजूद आका उनसे कहते हैं ये कुल्हाड़ी उठाइए और 15 दिन तक दिखाई न दीजिएगा और जाइए जंगल में लकड़ियां काटिए और लकड़ियां काटने के बाद उसको बेचिए और अपने बाल और बच्चों की परवरिश का इंतजाम कीजिए। अब वो 15 दिन के बाद आते हैं, उनके बदन पे अच्छा कपड़ा होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। तो बताओ दोस्तों, अगर सिर्फ अगर दुनिया की मजम्मत होती तो आका उनको मस्जिद नबवी से दूर करते, आका उनके लिए कुल्हाड़ी में दस्ता लगाते, आका उनसे कहते जाओ मेहनत करके बच्चों का पेट पालो, ना कहते। आप कहते आओ यहाँ आओ और चलो मुसल्ला बिछा के बैठे रहो वहीं और कहीं जाना नहीं। नहीं नहीं, उम्मत को सबक सिखाया है। इस वाक़े से हमारे नौजवान सबक लें, कायली छोड़ दीजिए, मेहनत के आदी बनिए, दस्ते बाजू में कुछ ताकत पैदा कीजिए। गैर कौमें कहां से कहां निकल गई और आप हैं कि एक बारिश का मोबाइल लेकर दोराहों और चौराहों पे बैठे हैं, तिराहों पे बैठे हैं। उम्मत का कत्ले आम हो रहा है। फिक्रिये के एतबार से, अकीदे के एतबार से इर्तिदाद की लहर चली हुई है और आप और हम हैं कि हमारे कानों पर जूड़ी रेंग रही है। होगी अजान, हो रहा होगा कहीं के मसला, हमारे पास तो पैसा नहीं है, अब रोए और गए, मेहनत के आदी बनिए। लखनऊ जैसा इलाका, इस इलाके में कहां कहां से लोग आते हैं और जरिए माश तलाश के कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हम देखते ही हैं कि आज मुसलमान का बेशतर वो तबका जो मकामी है ऐसा गाफिल है कि न दीन का है न दुनिया का है, न दीन का है न दुनिया का है। अरे जिस दुनिया को बहाना बनाकर पीछा छुड़ाकर काहिल बनते हो, काहिल मत बनो, सबक सीखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से कि सहाबी को कहते चलो उठाओ कुल्हाड़ी और मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालो।
अरे ये फक्र फाका ये कुफ्र तक पहुंचा सकता है, इसको मामूली न समझो, इसको दीन से न जोड़ो। दुनिया कमाओ लेकिन दिल में ना आने दो, जेब में रखो और उसके जरिए से अपनी आखिरत बनाओ, अपने अल्लाह को राजी करो, उससे ताल्लुक का इजहार करो, उससे मोहब्बत का इजहार करो। अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह की जब मोहब्बत आ जाएगी तो ये जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर उनकी मोहब्बत दिल में ना आई तो ये जिंदगी नाकाम हो जाएगी। तो अर्ज ये कर रहा था, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गया जो बुराइयों से बचता रहा। अब आका की बारगाह में आइए और आका ने ऐसी जामे बात बता दी, ऐसी जामे बात बता दी कि उसको अगर इख्तियार कर लिया जाएगा तो माशरे में बहार आ जाएगी। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क़ो हदीसिन, हुस्नो खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुहमतिन। आका फरमाते हैं चार चीजें अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, तुम्हारी आखिरत भी बनेगा। चार चीजें गारंटी के साथ। कौन कह रहा है? सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, चार बातें उतार लो। हिफ्ज़ अमानतिन, अमानतदारी को अपना लो, अमानतदार बन जाओ, अमानतदार बन जाओ। आज दुनिया के अंदर खयानत आम है, हर लाइन में खयानत आम है। मुल्क का मुल्क इन खाइनों बदबख्तों की वजह से डूबा जा रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा आवा खयानत में मुब्तला है। आका फरमाते हैं, ईमान वालों तुम अमानतदार बन जाओ, अमानत को माशरे में आम करो। और ये ऐसी सिफत है कि मेरे आका इस नाम से खूब मशहूर हैं। मेरे आका की दो सिफात बहुत मशहूर है, अल अमीन व सादिक। मुशरिकीन मक्का जो आपका इनकार करते थे, आपके जानी दुश्मन बने हुए थे, आपकी जान लेने के दर पे रहते थे, वो भी आपको कहते थे अल अमीन और सादिक, यानी अमानतदार और सच्चा। दूसरी बात आका ने फरमाया, सिद्क़ो हदीसिन, सच बोलने के आदी बनो, सच बोलने के आदी बनो, झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला करो। झूठ बोलने से फरिश्ता 70 मील दूर चला जाता है। अब कह दिया गया, हमने सुना, हाँ दूर चला जाता है, अल्लाह के रहमत से दूरी हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत से आदमी दूर हो जाता है, फरिश्ता दूर चला जाता है। तीसरी बात आका ने जो इरशाद फरमाई, वो इरशाद फरमाई कि तोहमत से बचता रहे आदमी। तोहमत न लगाओ, इससे माशरे में बुराई फैलेगी और बुराई आम होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो निस्बत थी इस जलसे की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और जिन बच्चों ने मेहनत किया है, अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। और ये जो चिराग जल रहा है, इस चिराग को जलाए रखें और घरों की तालीम भी ज़रूरी समझें। जो हमारी बच्चियां इस उम्र को नहीं है कि जो मकतब में आए, तो घर में उनकी तालीम का एहतमाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह घरों में ऐसे अफराद हैं जो उर्दू पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं। दीन की बुनियादी किताबें जो अकायद से मुताल्लिक हो, फ़ज़ाइल से मुताल्लिक हो, घरों में उसको पढ़वाया जाए और सुना जाए। और असरी दरसगाहों में अगर हमारे लगता है जिगर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ख़ास तौर से उनके जहनों को जहन साजी की जाए और दीन के ताल्लुक से उनको बेदार किया जाए, उनके अंदर कलमे तौहीद को जिंदा किया जाए और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को जिंदा किया जाए। इसके लिए सहाबियात के वाक़यात माँ बहनों को सुनाए जाए, इससे उनको हौसला मिलेगा। वो हमसे और आपसे कई गुना ज्यादा इंशाअल्लाह दीनदार बनेगी। और जब वो दीनदार बन जाएगी तो उनसे होने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह दीनदार बनेगी। क्योंकि माँ की जो गोद होती है, सबसे पहली दरसगाह होती है, पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। माँ दीनदार रहेगी इंशाअल्लाह, तो बेटा बच्चा जो होगा, वो जो पलने वाला होगा उसकी गोद में, वो भी दीनदार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपना ताल्लुक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।